Good morning, everyone. Ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. In a previous class, we have completed with this topic, that is war with Marathas. I hope you have understood this war with the Marathas. We have Yes, completed this ma'am. topic, na? Yes. Now, in this, what we have seen from this paragraph, we have seen that how initially the company came as a trading group, and slowly, by following many new policies, by framing new policies, now company starting the expansion of its power and the territory itself. अब कंपनी धीरे धीरे क्या कर रही है, अब उनका ट्रेड करना ही नहीं, अब वो अपना पावर भी एक्सपेंड कर रही है. हाउ इट इज एक्सपेंडिंग द पावर? बाय एनेक्सिंग द टेरिटरीज. कुछ ना कुछ नई पॉलिसीज बना करके टेरिटरीज को अपने अंदर मिला रही है. क्लियर? एंड इन दिस वी हैव सीन द पॉलिसी ऑफ व्हाट? सब्सिडरी अलायंस. व्हाट वाज द सब्सिडरी अलायंस? Do you remember the policy of subsidiary alliance? Nobody remembers policy of subsidiary alliance, under which the part of territory of ours was taken under the control of a company. What was policy of subsidiary alliance? What was subsidiary alliance? Very bad. That means you are not revising the lesson what I am teaching you. जितना मैं पढ़ाती हूँ आप सिर्फ उतना ही देखते हैं, आप घर से अपने खुद से पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल. And if you will not revise yourself, you will not be able to remember the things. अगर आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपको याद भी नहीं रहेगा. मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद एक बार आप लोगों को खुद को करना भी जरूरी है अपने आप से. You should read the lesson till where, at least till where I had explained. Now, subsidiary alliance means it was a policy to take the Indian territories under their control. Now, in that policy, the Indian rulers were not allowed to keep the army with them. Now, here we have read about this subsidiary alliance. Page number 15. I, I hope everybody is underlined this. Everybody is underlined this. Very important. Subsidiary alliance. According to the conditions of subsidiary alliance, the rulers, Indian rulers, were not allowed to have their own independent armed forces, and they were to be protected by whom? किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएंगे वो? प्रोटेक्शन कौन देगा जब इंडियन रूलर्स के पास आर्मी नहीं होगी तो? Company. Very good. Then they will. Company. Very good. Then they will be protected by the company, and for that, what they have to do? On the other hand, what Indian rulers have to do? जब कंपनी प्रोटेक्शन देगी तो इंडियन They रूलर्स. had to pay to the company. Very good. They had to pay to the company for the protection. And if any king failed to give that payment, what was done? He have to give half of his property to the company. प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे बेटा, यहाँ पर पार्ट ऑफ द टेरिटरी. उनका जो भी किंगडम में जितना भी Sorry, ma'am. हाँ, जितना भी राज्य था उनका, उस राज्य में से थोड़ा सा एरिया वो कंपनी को देंगे एज अ पेनल्टी. क्लियर? Those who join now, please Yes, ma'am. chat box. Now, this was according to the subsidiary alliance. This was the policy of subsidiary alliance. Clear? Now, for example, this Nawab of Awadh refused to pay the payment, which was not able to give the payment for the subsidiary forces. Then his half of the territory was taken by the company. The same way, Hyderabad territory was also a part of the territory of Hyderabad was also taken under the company. So this way we have seen that one after another now company had started having control over the Indian states.
Now we come to a new topic, a claim to paramountcy. Now, claim to paramountcy means a claim for supreme authority or a power. A claim to supreme authority or a power. It is clear from the above that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. Now, from the above, whatever we have read in this lesson, from the above description, it is clear that early 19th century, the company had persuades had indulged in the aggressive policy. बहुत सी aggressive policies बना दी गई जहां से कंपनी ने क्या करा, अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू कर दिया, अपना किंगडम, अपना कंट्रोल इंडियन स्टेट्स पे बढ़ाना शुरू कर दिया. Now under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. Now एक नई पॉलिसी, एक हमने देखा अभी, which policy? Subsidiary alliance. Now another policy was policy of paramountcy, which was initiated, which was given by whom? Lord Hastings. Clear? Now the company claimed that its authority was paramount or सुप्रीम. अब कंपनी इस पॉलिसी से क्या बता रही थी कि वो ही एक सुप्रीम अथॉरिटी है, वो ही एक पावरफुल अथॉरिटी है टू रूल ओवर इंडियन टेरिटरीज. So this was the policy of paramountcy. Now the company claimed that the authority was paramount or supreme. Paramount means supreme. Hence its power was greater than the Indian states. और उनका जो पावर था वो बहुत ज्यादा है इंडियन स्टेट से. So in order to protect its interest, it was justified in annexing or threatening to annex any Indian kingdom. Now अब उनका क्या मेन एम हो गया था, अपने अंदर एनेक्स मीन्स अपना किंगडम बढ़ाना, दूसरे किंगडम को अपने किंगडम के अंडर में मिला लेना, to have the control over other territories. That is called annexing. So now the company started annexing the Indian kingdom, Indian states, और नहीं अनेक्स कर रही थी तो वो उन स्टेट्स को एक तरीके से डरा रही थी कि वो किसी भी तरह अपनी स्टेट्स, अपनी टेरिटरीज का कुछ पार्ट कंपनी को दे दें. This view continue to guide later British policies as well. और इसी तरीके से पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज और भी कंटिन्यू करी ब्रिटिशर्स ने फॉर द एक्सपेंशन ऑफ इट्स पावर, अपना पावर बढ़ाने के लिए. Now this process however did not go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur, अब ये ऐसा नहीं रहा कि इजीली कंपनी को एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी पे कंट्रोल मिलता गया और वो अपना पावर एक्सपेंड करती रही. बट हमको देखने को मिलता है कि यहाँ पर कई जगह उनको रोका भी गया एंटर करने के लिए, अपनी टेरिटरी में एंटर करने के लिए इंडियन रूलर्स ने कंपनी को रोका भी. नाउ वन स्मॉल स्टेट ऑफ किटूर, किटूर एक स्मॉल स्टेट है कर्नाटक में, जो आज हम कर्नाटक कहते हैं, वहां पर किटूर एक स्टेट है. वहां पर रानी चन्नम्मा took the arms and led the anti-British resistant movement. वहां पर रानी चन्नम्मा का रूल था और उन्होंने आवाज उठाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ और उन्होंने किसी भी तरह कित्तूर के अंदर एंटर करने के लिए ब्रिटिशर्स को रोके रखा. मीन्स resisted मीन्स रोकना, ब्रिटिशर्स को मीन्स एक से दूसरी टेरिटरी ब्रिटिशर्स अपने अंडर में ले रहे थे तो रानी चन्नम्मा ने कित्तूर के अंदर उनको एंटर नहीं होने दिया ताकि वो अपना सुप्रीम अथॉरिटी यहाँ पर नहीं शो कर सके. She was arrested. Finally, she was also arrested and in 1824 and died in the prison in 1829. So when fighting for the resistance, not letting the Britishers to get inside the Kittur, Rani Chennamma died and in prison only in 1829. उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर बाद में उनकी डेथ भी हो गई. But Rayana, underline this also. Who was Rayana? Rayana was a poor चौकीदार of संगोली in कित्तूर. अब कित्तूर जगह पर, कित्तूर स्टेट में ही संगोली करके एक जगह है, वहां के चौकीदार का नाम है रायना. क्लियर? क्लियर? Now he carried on the resistance. अब जब रानी की डेथ हो गई तो ये रायना जो चौकीदार थे ये
कंपनी को रोके रहे ताकि वो कंपनी एंटर नहीं हो सके फितूर में. With popular support, he destroyed many British camps and records. अब इनका सपोर्ट कॉमन मैन ने भी करा, कॉमन पीपल ने इनका सपोर्ट किया ताकि कंपनी किसी भी तरह रुकी रहे, ये एंटर नहीं करे कितूर में. और पॉपुलर सपोर्ट से ही रायना ने ब्रिटिश कैंप्स को और काफी रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. एंड ही वाज कॉट एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश इन 1830. फाइनली ही वाज आल्सो, रायना वाज आल्सो कॉट एंड हैंग्ड, उनको भी फांसी की सजा दे दी गई बाय द ब्रिटिश इन 1830. You will read more about several cases of resistance later in the book. और इसी तरीके की रेजिस्टेंस के काफी इंडियन रूलर्स ने कंपनी के लोगों को, ऑफिशियल्स को, गवर्नर जनरल्स को रोका ताकि वो अब उनके स्टेट पर कंट्रोल नहीं कर सकें. Now in later 1830s, the East India Company became worried about Russia. Now later 30s में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी है उनको किससे फियर हो गया? रशिया की वजह से फियर होने लगा. बिकॉज नाउ रशिया, उनको क्या डर था रशिया से कि रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट. उनको ये डर था कि रशिया अब अपना एक्सपेंड कर रहा है पावर, और उनको ये डर था कि वो नॉर्थ वेस्ट साइड से एशिया में एंटर हो जाएगा रशिया. एंड सो ड्रिवन बाय दिस फियर, इस फियर के चलते द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर द कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट पार्ट. और इसीलिए जब उनको ये डर था कि रशिया पूरा कंट्रोल कर लेगा एशिया में आकर के, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने इस डर से अपना कंट्रोल अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ा दिया. किसने अपना कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट की तरफ बढ़ा दिया? ब्रिटिशर्स ने. वेरी गुड अर्नव. दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान. वो बहुत लंबे समय तक एक युद्ध ये लड़ा उन्होंने अफगानिस्तान से बिटवीन 1838 to 1842 एंड एस्टैब्लिश इनडायरेक्ट कंट्रोल कंपनी रूल ओवर दैट. और धीरे धीरे उन्होंने जैसे ही कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट की तरफ शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने, सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान से लड़ाई शुरू कर दी और वहां पर अपना कंपनी रूल इस्टेब्लिश कर दिया. क्लियर. फिर उन्होंने धीरे धीरे अफगानिस्तान के बाद सिंध की तरफ अपना मतलब स्टार्ट किया, टेकन ओवर इन 1843. अब सिंध को भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया इन 1843. नेक्स्ट लाइन वाज पंजाब. फिर उसके बाद किसकी टर्न थी? पंजाब को कंपनी के द्वारा अपने अंडर कंट्रोल में ले लेना. बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. अब यहाँ पर कौन थे महाराज पंजाब के? रंजीत सिंह. रंजीत सिंह. वेरी गुड. ही हेल्ड बैक द कंपनी. उन्होंने कंपनी को रोके रखा, उन्होंने कंपनी को कंट्रोल नहीं दिया पंजाब का, अपने पंजाब में एंट्री नहीं दी. आफ्टर हिज डेथ, अब उनकी डेथ के बाद इन 1839 थ्रू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स, बहुत बड़े वॉर्स लड़े गए पंजाब से कंपनी के द्वारा विद सिख किंगडम से. अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वाज आल्सो अनेक्स्ड. मींस पंजाब को भी कंट्रोल कर लिया गया. किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा. कंपनी. क्लियर नाउ ऑल दिस? यस मैम. ओके. Yes, ma'am. धीरे धीरे अब ये कंपनी क्या पॉलिसी अपना रही थी? अपना यहाँ भारत में रहकर अपना पावर स्टैब्लिश करना मांग रही थी, और इसीलिए वो धीरे धीरे एक के बाद एक टेरिटरीज अपने अंडर में ले रही थी. नाउ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. अब एक और नई पॉलिसी थी कंपनी ने जो दी, वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. ये भी एक अलग पॉलिसी. पहला हमने पढ़ा कौन सी? सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस. सब्सिडरी अलायंस. सेकंड पॉलिसी हमने पढ़ी पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, अपने आप को सुप्रीम अथॉरिटी साबित करना. थर्ड एक और ये पॉलिसी है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. नाउ द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहौजी, who was governor general from 1848 to 1856. नाउ जो फाइनल वेव था कि ये फाइनली अब ये सारी टेरिटरीज भी हम अपने अंडर में ले लेंगे, ये किसके द्वारा पॉलिसी शुरू करी गई? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा. who was the governor general from 1848 to 1856. Now he devised a policy that was known as
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब इन डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी दी? डॉक्ट्राइन ऑफ। Doctrine of lapse. So this policy was given by Lord Dalhousie, and according to this policy, इस policy के according क्या था कि if any Indian ruler died without a male heir, अगर किसी राजा की, इंडियन रूलर की, इंडियन राजा की डेथ हो जाती है विदाउट द मेल हेयर मीन्स विदाउट द मीन्स अपने Prince. हाँ किंग राजकुमार, अगर उनके पास कोई मेल हेयर नहीं है, अपना उत्तराधिकारी नहीं है, अब राजा के बाद कौन बैठता है गद्दी पे? राजा का बेटा, है ना? और राजा का अगर राजा Yes, ma'am. का बेटा नहीं है, अगर उसके पास कोई बेटा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो फॉर दिस पॉलिसी क्या था कि उनका किंगडम ऑटोमेटिकली कंपनी अपने हाथ में ले लेगी। क्लियर? अभी क्या था पॉलिसी? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यस, Yes, ma'am. तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ने ये पॉलिसी अपनाई ब्रिटिशर्स ने कि अगर किसी राजा इंडियन रूलर के पास अपना बेटा नहीं है राज चलाने के लिए, उनका जो राजकाज है वो सारा ब्रिटिश अपने अंडर में ले लेगी और उनका राज बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लैप्स मतलब उस भारतीय राजा का किंगडम खत्म हो जाएगा और वो टेरिटरी जो भी थी वो ब्रिटिश अपने अंडर में ले लेगी। Now that is become the part of the territory. One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. और इस डॉक्ट्राइन से, इस पॉलिसी से काफी सारी टेरिटरीज कंपनी ने अपने अंडर में ले ली। जिनके पास, राजा के पास खुद का अपना बेटा नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था गद्दी पर बैठने के लिए, तो ऐसे बहुत से राजा थे और उन सब राजाओं का किंगडम क्या करा, कंपनी ने एक के बाद एक अपने अंडर में ले लिया। Now, these areas were Satara, Kambipur, Udaipur, Nagpur, Jhansi. So these were those areas which are annexed under the policy of doctrine of lapse. Doctrine of lapse के चलते इन areas को ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया क्योंकि यहाँ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। क्लियर? फाइनली इन Excuse me, ma'am. यस बेटा, यस नंदिनी, Ma'am, have you marked my present? yes, those who have joined the meeting late also, if you are writing present in the chat box, I am marking present for them. Mark present in the chat box, everyone. Those who have joined later and not marked. Now finally in 1856 the company also took over Awadh. अब धीरे धीरे अवध को भी अपने अंडर में ले लिया कंपनी ने। Now the reason, the argument of taking Awadh under its control was different. एक तरीके से अलग था कंट्रोल। जब अवध को कंट्रोल में लिया तो कंपनी ने एक अलग तरीके का आर्ग्यूमेंट दिया कि क्यों वो अवध को अपने अंडर में ले रही हैं, क्यों ले रही। उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया कि they said that they were obliged by the duty, वो कंपलसरी थी, उनका ड्यूटी था, उनका फर्ज था कि उनको अवध अपने अंडर में लेना था, because it was misgovernment was there by the नवाब। नवाब एक अच्छी तरीके से गवर्नमेंट रन नहीं कर पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रन कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो अपने अंडर में अवध को ले ले। सो दिस वाज द आर्ग्यूमेंट गिवन बाय द कंपनी एज ही हैड कंट्रोल ओवर अवध। अवध के ऊपर कंट्रोल करने के बाद उन्होंने ये अपना आर्ग्यूमेंट दिया। आई होप इट इज क्लियर। Yes, ma'am. Okay, now. Okay, fine. Now what happened? And wealth by humiliating way. अब जब अवध के लोगों को बहुत ही नाराज हो गए वो कंपनी वालों से, why? Because just because कि वो झूठा सच्चा बोल करके और अवध को अपने अंडर में मिला लिया था कि नवाब अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हैं इसलिए अवध भी उनके अंडर में आ जाए। तो the people of Awadh became very much enraged. Enraged means very much angry, and they all joined the great revolt that broke in 1857. 1857 में you have might have heard first war of independence. First war of Indian Yes, independence ma'am. 1857 में लड़ा गया था। तो उस वॉर में अवध के लोगों ने अपना
क्या करा, ज्वाइन कर लिया. आई होप क्लियर, इट इज क्लियर एवरीवन. Yes, ma'am. इन दिस एक्सक्यूज मी मैम. बेटा पूजा. मैम कल मैम नोटबुक सबमिशन करनी है बट मैम मेरे पापा ना मैम बाहर है मैम किसी काम से, तो मैम मैं आपको 31st को दे सकती हूँ क्या? 31st बेटा कल ही आपका टर्न, यू हैव टू कम अकॉर्डिंग टू योर टर्न वाइज बेटा, है ना, अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल. एंड नेक्स्ट बट मैम मेरे पापा मैम बाहर है मैम, मैं किसके साथ आऊंगी मैम नोटबुक देने? listen, next time whenever it will be your turn, तब आप दे देना. ओके आपकी 7 अगस्त को है मैम, 7 अगस्त को लेके आ सकती हूँ? जब भी आपकी टर्न नेक्स्ट आएगी तब, जब एसएसटी की टर्न आएगी जब. मैम एसएससी की तो मैम कल है ना 24 को. कल 24 के बाद नेक्स्ट टर्न जब कभी भी एसएसटी की टर्न आएगी तब आप लेकर आना, तब मैं चेक करूंगी. क्लियर. ओके मैम. Now in this case, you might have seen now this yellow part. Yellow part is under the British rule. Now previously Britishers were having only this much rule part of the under their control of India. India का इतना ही part था जो yellow part दिखाया जा रहा है. This was only under the Britishers. Now slowly they started expanding their territories, अपना control power बढ़ाने लग गए. And see here how much part it is there under the yellow part, it is there under the British control. Now here finally we see most of the Indian territories were under the British control. British rule. Yes, ma'am. Now setting up a new administration. Now new administration setting कैसे करा Britishers ने. Warren Hastings, the Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in expansion of military power. Military power को बढ़ाने के लिए वॉरेन हेस्टिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है for the expansion of the company power. Now, by his time, the company had acquired power not only in Bengal. Now, when he was the Governor General, company not only had the power in the Bengal, but also in Bombay and Madras. Bombay and Madras अपना power establish कर दिया. Now, British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. Underline this. What were presidencies? When the British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. Clear? What were presidencies? जो Britishers ने territories annex करके अपने साथ मिला ली थी, उनको वो presidencies करके बुलाते थे. And broadly speaking, there were 3 main presidencies. कितनी presidencies थे? 3. Bengal, Madras and Bombay. So 3 main presidencies were there made by company. Each was ruled by the governor. और हर presidencies किसके अंडर में थी हर presidency? Governor के अंडर में. The supreme head of the administration was Governor General, and the supreme head of the administration to look after rules, regulations, to look after the administration. Whose work was it? It was the work of Governor General. Now, Warren Hastings was the first Governor General, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. Justice provide करने के लिए Warren Hastings first Governor General हुए, जिन्होंने बहुत सारे administrative reforms means बहुत सारे administrative changes लेकर आए justice provide करने के लिए. Now, what all changes were made in the administration to provide justice? We will read in this further paragraph. From 1772, a new system of justice was established. Now, in 1772, a new system of justice was established. Each district was having 2 courts. हर district के कितने courts होते थे हर district में, province में? 2 courts. One was criminal court, which was called as फौजदारी अदालत. Criminal court को क्या कहा जाता था उस वक्त? फौजदारी अदालत. And another was civil court. Another was civil court. So how many types of courts were there? 2.
One was criminal code, which was called as, फौजदारी अदालत. very good Arnav, Faujdari Adalat. And another was civil code, Civil code. which was called as, दीवानी अदालत. very good, Diwani Adalat. So Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors. अब यहाँ पर कौन हेड थे? यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हेड बना दिया गया था इन कोर्ट्स में. अब जो मौलवीज, मौलवीज कौन थे? कौन थे मौलवीज? द मुस्लिम लीडर्स, है ना? मुस्लिम लीडर्स, मुस्लिम प्रीस्ट्स आर कॉल्ड एज मौलवीज. और जो हिंदू पंडित्स थे, इन दोनों को क्या करते थे? ये दोनों मौलवीज और पंडित्स, ये यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए इंडियन जो लॉज थे वो इंटरप्रेट करते थे, बनाते थे. क्लियर? समझाते थे कि ये चीज हिंदू लॉज में है, ये चीज मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग है. एंड हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स, जो कि सिविल कोर्ट्स में प्रिसाइड करते थे, सिविल कोर्ट्स के लीडर थे. नाउ द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर द काजी एंड मुफ्ती. और जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो अभी भी किसके अंडर में थे? काजी और मुफ्ती के अंडर में थे. हु आर काजी? काजी आर द जज, मुफ्ती आर द जूरिस्ट. छोटे वाले जो केस लड़ते हैं वो मुफ्ती. मुस्लिम कम्युनिटी के दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपॉन्डिंग द लॉ एंड काजी वुड एडमिनिस्टर. जो भी लॉ काजी बनाते थे, जज बनाते थे, वो देखते थे कि वो मुफ्ती देखते थे कि दैट आर प्रॉपरली ओबेड और नॉट. सो स्टिल in criminal courts, who were the main leaders? Qazi and Mufti. Clear? Now the word Yes, ma'am. given, what does the word impeachment means? Impeachment means a trial by the House of Lords. एक ट्रायल है हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो कि इंग्लैंड में होता था, फॉर द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट द पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स. किसी के भी प्रति कोई मिसकंडक्ट करता था तो उसको कहाँ पर, उसका चार्ज कहाँ पर होता था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, जो कि इंग्लैंड में था. और इसको बोलते थे इम्पीचमेंट. उसके ऊपर केस जो चलता था उन्हें बोलते थे इम्पीचमेंट. Now the major problem was that the Brahmin Pandits gave different interpretations of local laws. Brahmin Pandits थे वो अपने अलग अलग तरीके से बताते थे लोकल लॉज को, और बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र. धर्मशास्त्र के डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो अपने अपने तरीके से यूरोपियन कलेक्टर्स को बताते थे अपने रूल्स एंड लॉज. टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी, एक तरीके से एक समान लॉज बताने के लिए इन 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज. 11 पंडित्स को बोला गया कि सारा जो भी हिंदू रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एक साथ आप कंपाइल कर दो, एक साथ आप इकट्ठे करके एक क्या बनाओ? एक हिंदू लॉज, डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज वाज प्रिपेयर्ड. बिकॉज सब जो भी ब्राह्मण्स थे सब अपने अपने व्यू पॉइंट अलग अलग तरीके से लॉज को बता रहे थे यूरोपियन को. तो यूरोपियंस बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप सब एक साथ रूल बना करके हमें हिंदू लॉज के बारे में, डाइजेस्ट के बारे में एक साथ कंपाइल कर दो, इकट्ठा कर दो. नाउ दिस हिंदू डाइजेस्ट जो लॉज थे, NBL had translated these digest in English. अब इनको इंग्लिश में किसने करा ट्रांसलेट? NBL had ने. And in 1778 a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges. European judges के लिए अब कोड ऑफ मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल कर दिया गया. नाउ हिंदू लॉज को भी एक साथ कर दिया गया, मुस्लिम लॉज को भी एक अलग ग्रुप बना दिया गया, ताकि यूरोपियन जजेस को उनकी लॉज के बारे में जानने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो कि हिंदू लॉज क्या है, मुस्लिम लॉज क्या है. अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, अंडरलाइन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, under the regulating act a new supreme court was established. New supreme court was established in which act? Under the regulating act of 1773. And while the court of appeal कौन कौन से court of appeal थे? सदर निजामत अदालत was also set up in कलकत्ता. कलकत्ता में एक कोर्ट ऑफ अपील भी बनाया गया जिसको कहते थे सरदार निजामत अदालत. क्लियर?
Now the principal figure in the Indian district was the collector. Main important figure Indian district में कौन था? Collector था. Principal figure. Principal figure means important person. Principal figure means important person. जो district का important person, Indian district का important person कौन था? Collector था. Now as the title suggests, as the name indicates, collector. Collector का मतलब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, to collect. Collect क्या करते थे वो? Revenue collect करते थे, taxes collect करते थे. उनका काम था to maintain law and order in the district with the help of the judges. Judges की help से law and order maintain करते थे वो districts में. और पुलिस ऑफिसर्स और दरोगास को भी वो पुलिस ऑफिसर्स दरोगास और जजेस के हेल्प से वो डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे. हिज ऑफिस, उसके ऑफिस का नाम क्या था? कलेक्टर के ऑफिस का नाम कलेक्टरेट. became a new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. जो पहले प्रोविंसेस जिनके अंडर में था वो अब उनके अंडर में रह करके किसके अंडर में आ गया? कलेक्टर के अंडर में. अब वो जो ऑफिस है किसके रूप में बोला गया? कलेक्टर के रूप में, कलेक्टरेट. Here, now this collectorate, the office of collector became the center of power. Power बहुत powerful आदमी बन गया ये collector, who had the power to collect revenue, taxes, and with the help of judges, police officer, and darogas. Darogas means police soldiers, armies. He used to maintain law and order in the provinces. I hope till here it is clear. Yes, ma'am. Okay. So today I make an end here only. That's all for today. In our next class, we'll continue with the company army. Clear? And after company army, I'm going to give the question answers of this lesson. जैसे ही अभी एक क्लास में खत्म हो जाएगा ये लेसन, तो अब नेक्स्ट क्लास में जब ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगी. दैट पीडीएफ ऑफ क्वेश्चन आंसर्स आई विल गिव इट टू यू जब खत्म होगा लेसन तब. क्लियर? अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेसन. Lesson is still remaining. When lesson will complete, I will give the question answers. But might be the notebooks will not be with you. You keep the question answer PDF safely, and when the notebooks will be returned, तब आप वो काम करना. ठीक है? Hello. It is not in hurry bari. अभी Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये ना Yes, ma'am. नोटबुक में होगा. इसीलिए मैं ये नोटबुक में ये नहीं दे रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स. इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स अभी नहीं दे रही हूँ. क्यों नहीं दे रही हूँ? बिकॉज टुमारो यू हैव टू. आया समझ में? तो इस लेसन के वर्क नहीं करना है. इससे पहले जितना भी काम किया गया है उतना करके देना है आपको. ठीक है? ये लेसन अभी बाकी है इसलिए इसका मैं क्वेश्चन आंसर्स नहीं दे रही हूँ अभी. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी. आई होप इट. Okay, ma'am. एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. So that's all for today. Thank you.